Yes, Sairam children once again. Yes. Sairam ma'am. Sairam. As we were discussing different theorems, है ना? So today I think we have to discuss theorem 6.5, isn't it? I told you to solve theorem 6.3 and 6.4. Yes or no? आज थोड़ा सा मैं बोर्ड पे भी इन शॉर्ट करवा देती हूँ. थ्योरम 6.3 का बताना मुझे. देखो बोर्ड का इतना पार्ट मैंने ट्राई किया था कि इतना पार्ट तुम्हें विजिबल है, right? Keep your cameras on so that I will come to know whether whatever I am writing on board whether it is visible to you or not, है ना? Theorem 6.3 या 6.4. 6.3 मैंने explain कर दी थी. 6.4 anyone should read the theorem. Statement of theorem. Yes, Pragya. बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary. Yes. If a transversal, so let us suppose this L is transversal and M and N are two parallel lines. Whatever I am writing on board, is it visible to you clearly, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last I will take beta. हाँ, clearly visible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. So what is given to us? This transversal L is intersecting these two parallel lines M and N. And what we have to show, sum of co-interior angle is 180 degree. If we are naming it like angle 1 and angle 2, then what we have to show? Angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree. This we have to prove, right? समझ में आ रहा है? What is given? If a transversal intersect two parallel lines at two different points, so it is given to us that two parallel lines are there which are intersected by this transversal L, right? And then what we have to show that co-interior angles are supplementary, means sum of these two angles is 180 degree. Okay बेटा? Clear है? ठीक है. तो proof can be done in different ways. हम एक ही थ्योरम के प्रूफ को कई अलग-अलग टाइप से कर सकते हैं. तो बिफोर दिस ऑलरेडी एज वी हैव स्टार्टेड, कौन सा पढ़ा है हमने? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़ रखा है. एंड व्हाट एल्स वी आर नोइंग? दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ये कर लिया था ना? अल्टरनेट इंटीरियर. बेटा ये तुमने थ्योरम कौन सा पढ़ा है? नंबर क्या है इसमें? थ्योरम 6.4. Okay. अब इसको जो प्रूव करना है, अगेन देयर आर मेनी वेज. तो फर्स्ट आई एम डूइंग इट लाइक दिस. इसको दे दो एंगल 3, इसको दे दो एंगल 4. नाउ अगेन हाउ विल यू राइट द एंगल 1 plus 3 is equals to 180? Are you getting it? Angle 1 plus 3 is equals to 180. Now I am writing proof. 1 plus 3 is equals to 180. How? What's the reason? By linear pair, right? Similarly, you can write angle 2 plus angle 4 is equals to 180. Again the same reason, linear pair. अब बेटा क्योंकि स्पेस जो विजिबल है वो कम है, तो I am not mentioning here, बहुत गड़बड़ दिखेगा. You just write it equation 1 and equation 2, right? Take it as equation 1 and equation 2. Here we are having two equations, so when we are comparing it as RHS are equal, then we can compare this. So from equation 1 and 2, what do we get, children? Angle 1 plus 3 is equals to angle 2 plus 4, right? और हमें शो क्या करना है? 1 plus 2 is equals to 180. तो इतना अगर इसको कंपेयर करने की यहाँ पर जरूरत इस तरह से नहीं है. Only just I want to tell you, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. Now, what we have to show, angle 1 plus 2 is equals to 180 or angle 3 plus 4 equals to 180. Now, angle 1 and 4 are equal angle. देखो, angle 1 and 4, ये angle 1 और angle 4 are equal. किससे? Tell me the reason. Keep your video. Keep your video on. All of you, just keep it on. Make it on fast.
Yes. Now see, यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन तुम ले लो. Here we are having two equations. So out of these two you can take any one. किसी को भी ले सकते हो. Actually हमें क्या शो करना है? Either 1 plus 2 equals to 180 और 3 plus 4 equals to 180. क्योंकि दो पेयर है, तो इंटीरियर एंगल के कौन से हैं? एक तो 1 और 2 है और दूसरा कौन सा है? 3 and 4 है. ये हमको शो करना है, तो any one pair we will show. So we are going to take any one of the equation. So from equation 1 if I take, so what I have to show angle 1 plus 3. So from equation 1, ये equation 1 को यहाँ पे ले रहे हैं, तो I can write angle 1 plus angle 3 की जगह बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ? This angle 3 and angle 2 are equal. Yes or no? ये angle 3 और angle 2 है, तो ये मैं क्या लिखूंगी? Angle 2 is equals to 180 degree. What is the reason? यहाँ पे लिखना as angle 2 is equals to angle 3 by alternate interior angle. इसको शॉर्ट में लिखते हैं AIA. How do we write? Alternate interior angle A dot I dot A. AIA. Clear? So this we have to prove and here we have proved it. Is it clear to you? समझ में आया सबको अच्छे से? आगे समझ में? What was given? Two parallel lines intersected by this transversal. What we have to prove? Co-interior angles are supplementary. How we did it? We have written 1 plus 3 equals to 180, 2 plus 4 equals to 180 by linear pair. Then we can take any one of the equation. First equation I have taken here. So 1 plus 3 is equals to 180. So at this angle 3, I can write it. I can replace it by angle 2. Why? Because this angle 3 and this angle 2 are alternate interior angle, and we are knowing if two parallel lines are intersected by a transversal, then alternate interior angles are equal. So this concept we have used here. Is it clear to you, beta? इस तरह से हमने इसको solve किया है. Okay? Is there any problem? किसी को तुम और क्या कर सकते थे? इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे. यहाँ इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल, तो ये और ये आपस में इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल को भी यूज करके कई सारी मेथड से थ्योरम हो सकता है. आई होप यू हैव गॉट इट. यस चिल्ड्रन, समझ में आया सबको? हैव यू गॉट इट? यस मैम. यस मैम. आज बड़े दिनों बाद बोर्ड पे पढ़ाया तो मुझे भी बड़ा मजा आया बोर्ड पे लिखने में. तुमको मजा आया बोर्ड से पढ़ने में? वीडियो देखने में ज्यादा मजा आएगा कि ऐसे पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा? है ना मैम? बोर्ड में हाँ बोर्ड पे करेंगे बेटा धीरे धीरे. आई एम आल्सो ट्राइंग कि थोड़ा ब्रॉड एरिया विजिबल हो जाए ना अगर बोर्ड का, तो आई टीच यू ऑन बोर्ड आल्सो. कुछ चीजें हम इस पे देखेंगे, कुछ चीजें हम बोर्ड पे करेंगे, जैसे तुम्हारी चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग. कोई ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया जो नहीं समझ आ रहा है, दैट आई विल एक्सप्लेन इट ऑन बोर्ड. ठीक है? ऐसे भी हम जो भी है डिफरेंट टाइप से हम पढ़ते रहेंगे. ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन फॉर द नेक्स्ट थ्योरम व्हिच इज थ्योरम 6.5. आई होप यू डिड दिस थ्योरम एंड गॉट इट. ओके, is it visible beta? Yes ma'am. Yes ma'am. मैम. Okay, Rajvardhan, read the statement of the theorem beta. If a transitional interior two lines such that the pairs of interior angles on the same side of a transversal is the supplementary, then two lines are parallel. Yes, now this is the converse of above theorem which I have explained. वहां पर क्या दिया था प्रीवियस थ्योरम में कि ये दोनों लाइन पैरेलल दी थी और हमको प्रूव करना था कि को इंटीरियर एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री है, मींस देयर सम इज 180. नाउ दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम जो हमने अभी 6.4 में किया था. ये उसका कॉन्वर्स है. कॉन्वर्स मींस नाउ व्हाट इज गिवन टू अस दैट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, then lines are parallel. This we have to prove. What we have to prove here? AB is parallel to CD. अब यहाँ पे देखो बेटा, ध्यान दो, समझो. यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि these two lines are parallel. तो here we cannot use any concept
ऑफ पैरेलल लाइन। यहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं, क्योंकि ये कब होगा जब ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम कहीं कुछ ऐसे एंगल्स को इक्वल बता देंगे जिसके थ्रू हम बोल पाएंगे कि लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो लाइंस को पैरेलल बताने के लिए आइदर वी कैन शो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और वी कैन शो alternate interior angles are equal. If we are showing this, अगर हम ये शो कर सकते हैं then we can say alternate interior angle भी बेटा कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है। corresponding angles भी कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है। Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what is given to us beta? These two angles are supplementary, means their sum is 180 degree. This is given to us. तो इसको भी कुछ नहीं ऐसे ही करेंगे, ध्यान से देखो। What is given, अगर इन एंगल इसको 1 और 2 लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन वाला और येलो वाले एंगल को अगर तुम एंगल 1 और एंगल 2 लेते हो तो एंगल 1 + 2 = 180. This is given to you. You will give it equation 1. और यहाँ पर भी इसको दे दो, यहाँ 3 दे दो, यहाँ 4 दे दोगे अगर, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 = 180 by linear pair। ऐसे ही 1 + 3 = 180 लिखा। और क्या है 1 प्लस, ये इसको कौन सा नाम दिया था 2, तो 1 + 2 भी 180 है और 1 + 3 भी 180 है। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 1 1 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। तो क्या आ जाएगा 2 = 3। कर्सर पे ध्यान दो, ये 2 यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ आ जाएगा 3। तो 2 = 3 जैसे ही हुआ तो 2 = 3, बट these are what? These are alternate interior angles. So if alternate interior angles are equal, this means these lines are पैरेलल। एक बार इसको देख भी लो, देन आई विल सॉल्व इट ऑन बोर्ड। वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? नो मैम, थोड़ी सी स्लो है। स्लो है, रुको मैं वॉइस बढ़ाती हूँ थोड़ी सी। सप्लीमेंट्री यानी कि जो दो एंगल्स इंटीरियर वाले हैं सेम साइड में उनका सम 180। सप्लीमेंट्री यानी कि दो एंगल्स का सम 180। जो हमें प्रूव करना है द लाइंस आर, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट पैरेलली, कोई दिक्कत नहीं। अभी आ रही है आवाज क्योंकि इसका वॉल्यूम फुल है। एबी और सीडी लाइन बनाएंगे और इनको बीच में इंटरसेक्ट कर देंगे, एबी को आर पॉइंट पर और सीडी को एस पॉइंट पर। हमें दिया गया है कि जो इंटीरियर एंगल्स का ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल का सम है वो क्या है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो गिवन में लिखेंगे ARS + CSR = 180। हमें क्या दिया, चलो मैं थोड़ा इसको आगे करके बता देती हूँ, है ना। We have to prove this AB is parallel to CD. How can we prove it? Either if we are showing corresponding angles are equal or alternate interior angles are equal. अगर हमने ये बता दिया तो हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइंस क्या है, पैरेलल है। एंगल CSR प्लस में एंगल, इसमें एक एंगल को प्लस करेंगे, CS वाला एंगल इसमें ऐड करेंगे। तो ये क्या बना रहे हैं हम लोग, ये एंगल CSR प्लस में एंगल CSQ = 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों होगा, इसका रीजन इसके सामने लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180। यस। अब फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन की कैसे मान लेंगे हम, सेकंड इक्वेशन तो फ्रॉम फर्स्ट एंड, आई थिंक दिस वीडियो विल टेक टू मच टाइम। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम कंक्लूजन निकालेंगे। यहाँ पर देखो CSR दोनों में इक्वल है। अब यू कैन कंपेयर फ्रॉम हियर बेटा कि अगर हम इस तरह से पूरा नाम लिखते हैं तो इट इज टू मच कंफ्यूजिंग आल्सो, टाइम कंज्यूमिंग आल्सो। सिंपली इफ यू आर नेमिंग इट लाइक एंगल 1 2 और इसने इधर वाला ले लिया है तो तुम किधर और का भी, यहाँ पे इसको देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू बता रहा है। ऑलरेडी एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू, आइदर वी कैन शो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और वी कैन शो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कुछ भी हम अगर दोनों में से शो कर देते हैं देन वी कैन से कि लाइंस आर पैरेलल। तो हियर व्हाट इज शोन बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने जो एक्सप्लेन किया था तुम्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू किया था, तो यहाँ से भी कर लो। अब यहाँ पे अगर इसको 1 2 दिया और इसको 3 दिया तो 1 + 2 = 180 इट इज गिवन टू अस, एंड 2 + 3 = 180 बाय लीनियर पेयर। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों को कंपेयर करोगे तो 1 + 2 = 2 + 3, दोनों तरफ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 = एंगल
3. Angle 1 equals to angle 3, but these are what? These are corresponding angles. So if corresponding angles are equals, then lines are parallel. Is it clear to you? Have you got it? Yes, ma'am. Yes. I hope तुम्हें समझ में आ Yes, ma'am. हाँ ये देखो, ये क्योंकि इसको इस तरह से लिखेंगे, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट CSR से CSR यही कैंसिल कर दोगे तो यू विल गेट एंगल ARS इज इक्वल्स टू CSQ। पर ये वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से क्या हो जाएगा बेटा? दिस लाइंस विल बी पैरेलल। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, है ना? सी दिस वे यू कैन राइट, जो वीडियो में था वो करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू था। नाउ व्हाटएवर आई एम शोइंग टू यू, आई एम शोइंग इट थ्रू अल्टरनेट इंटीरियर, है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू मैं बता रही हूं। इज इट विजिबल व्हाटएवर आई हैव ड्रॉन ऑन द बोर्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is given to us? Angle 1 plus angle 2, ये given है। Angle 1 plus angle 2 is equals to 180. This is given to us. And what can we write? Angle 1 plus angle 3 is equals to 180 by linear pair. इसको दे दिया equation 1, reasons तुम लोग लिख लेना। Equation 2. Now compare these two equations, जब compare करोगे तो angle 1 plus angle 2 is equals to 180, 180 नहीं लिखना, चौक। अभी तुम लोग होते तो फटाफट तुम में से किसी को भी दौड़ा के चौक मंगवा सकते थे। एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है बेटा। अब एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल आ गया, तो क्या आ गया? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, मतलब कौन सा? ये एंगल 3 और ये एंगल 2, these two angles are equal, but these angles are what? But these are alternate interior angles. So if alternate interior angles are equal, then lines are parallel. तो यही प्रूव करना था हमको। Hence जो भी नाम तुमने दिया है, अगर LMN दिया है तो M is parallel to N या AB is parallel to CD, whatever name you have given, accordingly you can write. Is it clear to you? तो तुम corresponding angle को शो करके भी कर सकते हो, और as well as you can show alternate interior angles also, दोनों तरीके से कर सकते हो। Is there any problem in this to anyone? बताओ बेटा। टेस्ट तो मैं लूंगी बेटा अगली क्लास में। आई कैन टेक योर वन टेस्ट गूगल फॉर्म के थ्रू, एक टेस्ट तुम लोग का बना के मैं लूंगी, ठीक है? यस, okay, so this was theorem 6.5. okay, now next theorem 6.6, है ना? So for this we will read the statement of theorem 6.6. Is my screen is visible to you? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes, I am sharing it. So this is the theorem 6.6. है हमारे सामने, इसमें स्टेटमेंट anyone should read it. Theorem 6.6. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Yes, lines which are parallel to the same line are parallel to each other. हमारी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त है ना? Yes, होता है ना? जैसे मान लिया अक्षरा अक्षिता फ्रेंड्स हैं और जानवी अक्षरा की फ्रेंड है, तो जानवी अगर अक्षरा की फ्रेंड है तो अक्षिता की भी बनी जाएगी ना, ऑब्वियसली हो जाता है ना, दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त हो जाता है, होता है कि नहीं? लेकिन yes, उसका कॉन्वर्स, हाँ लेकिन कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू,
कैसा कॉन्वर्स क्या होगा? दुश्मन का दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या होता है? दोस्त होता है। यस, तो दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट मीन्स दुश्मन का दुश्मन हमारा दुश्मन, ये सही नहीं है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हालांकि हमारा कोई दुश्मन ना है भी नहीं और हमें बनाना भी नहीं है किसी को। ये तो जस्ट तुम लोग को थोड़ा सा ऐसे ही हंसाने के लिए और तुम्हें आसानी से कोई बात समझ में आ जाए इसलिए बताने के लिए बोला था, राइट? जरा मैं एक बार तुम्हारे चेहरे देख लूं, नहीं पता नहीं कौन कौन के क्या क्या सोचने लगेंगे अभी। हाँ बताओ जरा, सही है? दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त, जैसे पूजित और निलय दोस्त हैं और हितेंद्र निलय का दोस्त है, तो हितेंद्र पूजित का भी दोस्त बन जाएगा ना, होता है ना? चलो क्रिकेट खेलने चलना है तो एक साथ एक को बुलाओगे, दूसरे ने दो ने फिर तीसरे को बुलाया, इस तरह से करते हो। पर दुश्मन का दुश्मन अपना दुश्मन नहीं होता है ना? दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो जाता है, राइट? सही है ना? दोनों मिलके मजा चखाते हैं, चलो। ओके, लेट इट बी, है ना? चलो ठीक है। सो आ जाते हैं अपने थ्योरम पे। कहाँ गया? तब तक उस रेस्ट ले लिया थ्योरम में भी। यस, अब बेटा ध्यान से समझो, क्या प्रूव करना है हमको? लाइंस which are parallel to the same line are parallel to each other। मतलब यहाँ पे हमने ये 3 लाइंस ले ली, L, M and N, and here what is given to us? given पे जरा ध्यान दो, L is parallel to M, ये जो L है this L is parallel to M and this N is parallel to M, ये N भी M के पैरेलल है और L भी M के पैरेलल है, मतलब L भी M की दोस्त है और N भी M की दोस्त है, तो क्या होगा? L और N भी आपस में दोस्त होंगे, ये हमको शो करना है। मींस L इज पैरेलल टू N। हालांकि जो पैरेलल लाइंस होती है वो एक दूसरे की कभी दोस्त नहीं होती, बिल्कुल कट्टर दुश्मन कहीं किसी पॉइंट पे नहीं मिलती। इन दोनों में शायद भारत पाकिस्तान में समझौता हो जाए किसी बात को लेके, लेकिन इन दोनों लाइन में कभी समझौता नहीं होता। दे नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट इन एनी डायरेक्शन। तुम किसी भी डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर लो, डिस्टेंस बिटवीन दैम जो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस एट एनी पॉइंट इट विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है, ओके चलो ठीक है, हम देखते हैं तो क्या प्रूव करना है कि L is parallel to M और N is parallel to M, then we have to show L is parallel to N। ठीक है, ये L जो है N के पैरेलल है, ये शो करना है। कैसे शो करेंगे ध्यान से समझो। फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम गिवन में, एंड यू कैन सी हाउ टू राइट फर्स्ट गिवन देन टू प्रूव एंड देन प्रूव। तो अब गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस? L is parallel to M and N is parallel to M, ये गिवन है। अब टू प्रूव L is parallel to N। Now proof में first part we will take L is parallel to M। अब अगर L और M parallel है बेटा, तो tell me angle 1 and angle 2 which type of angles these are? 1 और 2 किस टाइप के एंगल्स होंगे? corresponding angle, very good। So you can write angle 1 equals to angle 2। first you will write as L is parallel to M, so angle 1 equals to angle 2 by corresponding angles। ठीक है, then फिर तुम लिखोगे also N is parallel to M। अब second part लेंगे, this one N is parallel to M, then angle 2 equals to angle 3। what is the reason? what is the reason? corresponding, सेम रीजन, यस, करस्पॉन्डिंग एंगल 2 और 3 भी तो करस्पॉन्डिंग होंगे ना आपस में, अगर M और N पैरेलल है तो 1 is corresponding to 2 and 2 is corresponding to 3। मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और 2 इक्वल है 3 के, तो दोनों को ये कंपेयर करोगे 1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 3, इसका मतलब 1 इक्वल हो गया 3 के। जैसे हमने लिया मान लो पूजित, निलय और हितेंद्र, है ना, तीनों स्टूडेंट्स हैं। निलय के पास 100 रुपीज है और पूजित के पास 100 रुपीज है, तो निलय और पूजित के पास सेम रुपीज हैं। अब हितेंद्र के पास उतने ही रुपीज है जितने पूजित के पास है, तो बताओ पूजित उसके हितेंद्र के पास कितने हुए? 100 सेम हुआ ना। तो ये बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाया है कि एंगल 1 इक्वल है 2 के और 2 इक्वल है 3 के, मतलब निलय और पूजित के पास इक्वल अमाउंट है
और वो है 100 रुपीज, और हितेंद्र के पास उतना ही अमाउंट है जितना पूजित के पास है, तो इसका मतलब वो भी कितना हुआ 100। तो क्या हो गया 1 = 2 और 2 = 3। इसका मतलब निलय और हितेंद्र के पास एक जैसा अमाउंट है। यस और नो? यस मैम। समझ Yes, में आई? ma'am. देखो तीन स्टूडेंट्स को किसी नाम ले लेते हैं, निलय, पूजित और हितेंद्र, है ना। निलय के पास 100 रुपीज है, पूजित के पास 100 रुपीज है, तो निलय और पूजित दोनों के पास इक्वल अमाउंट है। अब हितेंद्र के पास उतना ही अमाउंट है जितना पूजित के पास है, इसका मतलब हितेंद्र के पास कितना हो गया 100 रुपीज, राइट। तो क्या हितेंद्र और निलय के पास भी इक्वल अमाउंट नहीं हुआ? अभी 1 नंबर पे निलय को ले लिया, 2 नंबर पे पूजित को ले लिया, 3 नंबर पे किसको ले लिया, हितेंद्र को ले लिया। आर यू गेटिंग? समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. पूजित इक्वल है और पूजित और हितेंद्र Yes, इक्वल, ma'am. तो निलय और हितेंद्र भी तो इक्वल हुए ना। यस और नो? इनके पास भी इक्वल अमाउंट होगा। Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल है 2 के और 2 इक्वल है 3 के, तो इसलिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। अब इस m को थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाओ कि m कोई लाइन ही नहीं है, तो 1 और 3 को कंपेयर करो तो ये किस तरह के होंगे बेटा? 1 और 3 क्या होंगे आपस में? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो हमको यही प्रूव करना था कि L पैरेलल है किसके, n के। ये प्रूव हो गया। समझ में आई बात? अब वॉच, Yes, ma'am. इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, हमें लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसी लाइन जो किसी एक सेम लाइन के पैरेलल हो, ठीक है, ऐसी कोई भी कितनी भी लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में भी पैरेलल है, ठीक है। तो इसके लिए फिगर बनाएंगे। सबसे पहले L, M और N 3 लाइनें बनाएंगे, ठीक है, और एक लाइन बनाएंगे जो तीनों लाइनों को काटती है, जैसे ये, ठीक है, ये 3 बिंदुओं पर काटती है तीनों लाइनों को। और जीवन में लिखेंगे L पैरेलल टू N, N पैरेलल टू M। L जो है वो M के पैरेलल है और N जो है वो भी N के पैरेलल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, L M के पैरेलल है और N भी N के पैरेलल है। ऐसी दो लाइन L और N जो है वो किसी एक M के पैरेलल, तो हमें क्या करना है, तो जो L और N है ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी आपस में, ठीक है। तो 2 में लिखेंगे L पैरेलल टू N, ठीक है। इसको और इसको हमें पैरेलल प्रूव करना है। हाँ, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, जो ये एंगल है ये मान लेंगे 1, 2 और ये एंगल 3 मान लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर 1, 2, 3। प्रूफ में सबसे पहले L और M पैरेलल है, ठीक है। L और M ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है और पैरेलल लाइन पर करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो पैरेलल लाइन पर होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम Yes, this already I have explained it to you, beta कि angle 1 is equals to angle 2 by corresponding angle. Similarly, angle 2 equals to angle 3 by corresponding angle. इसको equation 1 और equation 2 दिया, तो from equation 1 and 2 you will write angle 1 equal to 2 and 2 equal to 3. This implies what? Angle 1 equals to angle 3. अब angle 1 और angle 3 अगर equal हो गए तो ये कैसे एंगल्स हैं? बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। थोड़ी देर के लिए m को भूल जाओ, सिर्फ L और N को ध्यान में लो। तो L और N में ये अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है 1 और 3 और ये अगर इक्वल है, देन दिस लाइंस आर पैरेलल। L इज पैरेलल टू N। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट एंड या ठीक है, ये साइड में एंगल, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल हमने प्रूव कर दिया। फिगर से हमें क्या दिख रहा है, एंगल 1 जो है इस तरफ बन रहा है और 3 भी इस तरफ बन रहा है, यानी कि करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हमें लिखना है जो एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल भी है एंड दीस एंगल्स आर आल्सो करस्पॉन्डिंग। ये एंगल इक्वल भी है और करस्पॉन्डिंग, और ये सिर्फ पॉसिबल कहां पर होता है, एंगल इक्वल भी हो और करस्पॉन्डिंग हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल। L और N जो है ये क्या होगी, पैरेलल। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस L पैरेलल टू N। ये हो गई हमारी थ्योरम कंप्लीट। हेंस वी हैव प्रूव्ड इट, राइट? यही प्रूव करना था। इज इट क्लियर टू यू बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। कौन से चैप्टर का टेस्ट? अच्छा, चैप्टर का टेस्ट तो
बताओ तुम लोग बताओ कौन से चैप्टर का टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो। 10 मिनट्स का एक छोटा सा टेस्ट लूंगी मैं, बाकी पूरी क्लास अपनी वैसी ही होगी। चैप्टर 2 का लेते हैं, पॉलिनोमियल। यस, पॉलिनोमियल का लेंगे, पॉलिनोमियल इज द बेटर ऑप्शन, है ना? ठीक है, ओके। अच्छा, जस्ट वेट मिनट। यस बेटा, सो डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है? चैप्टर 2 के लिए प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट क्लास में स्विच ऑन योर कैमरा। Here 25 students are shown and there only 23 are shown. What's the problem? ठीक है, ये थ्योरम भी बेटा साथ साथ सारे लिखते जाना और प्रूफ भी। नाउ एट द एंड ऑफ द चैप्टर, whenever the chapter will end, listen one thing very clearly. It will be helpful for you. बहुत ज्यादा तुम्हारी हेल्प होगी अगर तुम ये काम करते हो। एट द एंड ऑफ द चैप्टर you should write only the statements of the theorems which you have studied in this chapter. तो उससे क्या होगा, तुम सिर्फ स्टेटमेंट से अगर लिख लोगे ना बेटा, तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम पे याद आ जाएगा कि कौन सा थ्योरम यूज करना है। तुमने अभी तो हम एक एक थ्योरम पढ़ते जा रहे हैं, प्रूफ लिखते जा रहे हैं, कॉपी में एक्सरसाइज वाइज तुम लिखते जाओगे, क्योंकि जिस एक्सरसाइज के पहले जो थ्योरम आ रहे हैं हम वही डिस्कस कर रहे हैं और वही तुम उस ऑर्डर में लिखते जा रहे हो। बट लाइक एट द एंड ऑफ द चैप्टर एज समरी इज गिवन इन द बुक, तो यू शुड मेक योर ओन समरी आल्सो चैप्टर वाइज। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कैसे हेल्पफुल? मान लो जब हम अपनी एग्जाम देने जाते हैं, फाइनल एग्जाम हमारा 8 बजे से पेपर है, 7 बजे से घर से निकल रहे हैं, अब तुम सुबह सुबह उठ के क्या पूरे 15 चैप्टर रिवाइज कर लोगे? नो, वो 1 घंटे की भी पढ़ाई सिर्फ कैसे होगी, ये जो की पॉइंट्स हर चैप्टर से बना के रखोगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तुमने अगर हर चैप्टर के एंड में लिख के रखा और सिर्फ उतना भी पढ़ के चले जाते हो लास्ट मोमेंट में, है ना? दैट आई एम सेइंग। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला था समरी, तो पता चला सब सिर्फ समरी पढ़ के आ गए, हमने सॉल्व वॉल्व तो कुछ नहीं किया मैम, आपने कहा था समरी तो हम तो आ गए उठ के समरी पढ़ के, अब आप जानो। ऐसा नहीं है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू आई मीन? मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ वो समझ आ रहा है कि हम पूरी पढ़ाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट हम सारा का सारा नहीं पढ़ पाते हैं और उसकी वजह से हम कॉन्फिडेंस भी नहीं ले पाते हैं। तो अगर हमने इस तरह से अपने खुद के कुछ समरी बनाई, कुछ की पॉइंट्स बनाए, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू गो थ्रू इट जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। जब भी, और एग्जाम के 1 घंटे पहले तो फिर पढ़ना छोड़ भी देना चाहिए। गेट रेडी फॉर द एग्जाम एंड जस्ट कम एंड बी रिलैक्स। फिर तब ये नहीं करता रहना चाहिए उस टाइम, तूने पढ़ा, तूने क्वेश्चन करा, तूने क्वेश्चन किया, सुन के फिर जो पढ़ा है वो भी, ओ ये तो मैंने किया ही नहीं, फिर गया, जो किया है वो तो साफ हो जाता है, जो नहीं किया वही दिमाग में चलने लग जाता है। तो ये चीजें बहुत होती है, इसकी वजह से अपना लास्ट मोमेंट परफॉर्मेंस जो है वो बिगड़ जाता है। तो हम सारी दूसरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें, हमने जितनी तैयारी की है अच्छे से की है, ये सब चीजों पे ध्यान रखना है। तो लेकिन अभी ठीक है समरी, लेकिन जरूर से बनाओ, इवन नॉट इन मैथ्स, इन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो इफ यू आर मेकिंग योर ओन समरी, योर की पॉइंट्स, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और पता है जैसे जब ये चैप्टर जितने दिन चल रहा है, तुम एक या तो उसकी एक अलग से छोटी सी नोटबुक बना के उसमें लिखते जाओ तो भी ठीक है, कि तुम कभी भी, तुमको चैप्टर एंड होने का वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज 2-3 तुमने थ्योरम पढ़े हैं, तीनों थ्योरम वहां लिखते गए, अब इस चैप्टर के जितने की पॉइंट्स हो गए, हर रोज रात में सोने से पहले एक बार पढ़ लो। जैसे टेबल याद करते थे, हर रोज एक मम्मी बोलती होंगी ना, चल बेटा ये चार्ट लगा, एक बार रीड कर, नहीं याद हो रहा, चल एक बार रीड कर, है ना? तो वो रीड हो ही गए, अलग से रीड करते करते याद हो गए, कब याद हो गए पता ही नहीं चला, है ना? जैसे कुछ हम लोग को मंत्र भी, या हमारे घरों में जो चीजें बोली जाती हैं शाम को दिया बत्ती के समय, या शुभम करोती है, या कुछ भी इस तरह से हम जो सुनते हैं, जैसे मेरे पापा की आदत है कि वो नहाकर बिल्कुल राम रक्षा बोलते हैं, या कुछ और भीम रूपी कुछ ऐसे स्तोत्र बोलते हैं। वो चीज क्या हुई, हमको कभी भी अलग से बैठ के उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो चीज हम रोज सुनते थे, है ना? तो रोज हम, तुमने देखा होगा तुम लोगों ने अपने घरों में पूजा के टाइम जो आरतियां गाई जाती है, तुम लोग को अलग से उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी ने अलग से बैठ के याद किया, ओम जय जगदीश, अरे अच्छा इसके बाद याद है, तुमको अपने आप आ गई। एम आई राइट और नोट? अपने आप आ गई ना?
अपने घर में तुमने रोज अपनी मम्मी को, पापा को, जिनको भी सुना है, घर में जो भी पूजा करते हैं, रोज रोज वो आरती तुमने सुनी है, या जो भी तुम करते हो घर में, जो चीज तुमने रोज सुनी है वो तुम्हें अपने आप याद हो गई, तुम्हें अलग से उसको कोई टाइम नहीं देना पड़ा। तो इसी तरह से ये जो की पॉइंट्स बनाओगे ना, रोज एक बार पढ़ लोगे ना, हर चैप्टर के पढ़ते जाओगे, तो इन शॉर्ट तुम्हारा पूरे चैप्टर का रिवीजन भी होता जाएगा। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, अब हम 6 चैप्टर कर रहे हैं तो तुम फर्स्ट चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन रिवाइज कर पाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। हर कैटेगरी के एक एक दो कर लिए तो तुम पढ़ पाओगे, तो तुम रिवाइज कर पाओगे, और तुम्हारा नॉलेज जो है वो टच में रहेगा, है ना, तो तुम भूलोगे नहीं चीजों को। इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। ओके बेटा, चलो ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? अभी हमने ये थ्योरम किया, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, सम इजी क्वेश्चंस दैट शुड बी डन बाय यू। कुछ क्वेश्चंस जो भी होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेस्ड ऑन दीज थ्योरम्स दैट यू शुड ट्राई टू सॉल्व। दिस इज माय होमवर्क एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर चैप्टर 2 आल्सो। शॉर्ट एक 10 मिनट का ही टेस्ट लूंगी, ज्यादा नहीं, एमसीक्यू होंगे, दैट वी विल अरेंज। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग और से समथिंग? किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। मुझे टेंशन में क्यों आ गए बेटा? तुम्हारी तो तैयारी होगी चैप्टर 2 के नाम से, तुम टेंशन में क्यों दिख रहे हो? हाँ, नहीं हो ना, ओके। ऑल यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसा नहीं है, मार्क्स पढ़ना तो सिंसियरली पढ़ना, अच्छे से, ठीक है? सब लोग अच्छे से पढ़ के टेस्ट देना है। क्योंकि हम फिर जल्दी तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट होंगे, कब होंगे तो थोड़ी तुम लोग को भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि गूगल फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है। हालांकि और सब्जेक्ट्स में भी तुम्हें मिल ही रही होगी प्रैक्टिस, यस ना? पेरेंट इंटरेक्शन का भी टाइमिंग तुम्हें पता चल ही जाएगा, अब है ही तुम लोग का भी। हैव यू कम टू नो अबाउट पेरेंट इंटरेक्शन ऑफ योर क्लास? नो मैम। अच्छा, योर क्लास टीचर विल लेट यू नो, है ना? दैट आई नो, बट शी विल लेट यू नो, ठीक है? और हम सब भी वहां पर होंगे तो सब पता चल ही जाएगा घर पे तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। हाँ बेटा, ठीक है, पूछो, अब कुछ पूछना है तो पूछो, कोई डाउट है? हाँ, ये मोनिका एक रेगुलरली क्लास नहीं अटेंड कर रही है, मोनिका का एक नाम आ रहा है। बॉयज में और कौन है? आर्यमन कटवा। हाँ, व्हाई ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली? आर्यमन का पता है किसी को क्यों नहीं कर रहा है अटेंड? बॉयज में और कोई? नो। सुमित, यस, व्हाई? इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ हिम? निलय, सुमित, हाँ हाँ निलय बोलो। Ma'am, actually, ma'am, he sometimes attends because, ma'am, he feels like this class are not worth it to study. Oh, अच्छा, means he doesn't like online classes, right? Yes, ma'am. ओह, अच्छा, तो फिर ठीक है भाई, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। मे बी वो कुछ आगे जाके बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, अच्छा है ऑफलाइन ही। बेटा, अगर हम इतना टाइम के साथ खुद को एडॉप्ट नहीं करेंगे तो वी विल बी आउटडेटेड। हमको अभी तो स्कूल कब खुल पाएंगे, वी आर नॉट एबल टू से एनीथिंग अबाउट दिस, है ना? और ये सेशन अगर हमारा ऑनलाइन ही चलता है, ऑनलाइन ही, तो हमको एग्जाम्स के लिए, सारी क्लासेस के लिए प्रिपेयर, और हम कितना सीख रहे हैं इससे, अदर देन अवर स्टडीज। इससे पहले बताओ कभी हमने तुम्हें वीडियो दिखा के मैथ्स पढ़ाया? नो, इट इज अ डिफरेंट टाइप, यू हैव एंजॉयड इट आल्सो, है ना? कई बार हम लोगों का एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से तुमको समझ में आ जाता है, कई बार वीडियो से और अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि वो है ना, हमारे जितने सेंस ऑर्गन हमारी लर्निंग में एक्टिव होते हैं उतनी ज्यादा अच्छी और ज्यादा समय के लिए लर्निंग होती है। तो कई सारे हम पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, कहीं हम ऑडियो से पढ़ रहे हैं, कहीं वीडियो से पढ़ रहे हैं, कहीं कैसे, इतना सब तो अपना ऑफलाइन में भी नहीं हो पाता था। तो ही शुड अटेंड इट, right? Well, whatever. Okay children, so that's all for today. We are concluding today's class. Be prepared for class test in our next class. हम शांति पाठ के साथ conclude करते हैं। शांति शांति शांति।
Okay. Sairam children, take care of yourself and your family. Yes. Be with H square. You can leave the class now.